Hello guys, I welcome you all to the day 158 of our series, and in today's session we are going to learn about will and shall. So let's get started, and here is your yesterday's task. So let's have a look at it first. Here you were supposed to complete the sentences by using set phrases. The very first is I saw Jolly earlier. She is very bright and dash today. She is very bright and cheerful today. Next is there is no law and dash in the place. There is no law and order in the place, just bribery and corruption everywhere. Next is they said 4 o'clock, so they should be here sooner or later. Next is first and foremost. First and foremost. Wait, the correct spelling is F-O-R-E. We have got to establish our aims and objectives. Next is I used to love the hustle and bustle of the city life, but I am sick and tired of it now. Means I am bored of it now. I didn't have the instructions, so I just worked it out by trial and error. Next is it was a terrible flight. It was a terrible flight, but we finally got here safe and sound. And last one is I'm moving stuff from Pete's flat to my flat, and I have been back and dash all the day. Back and forth all day. So now let's learn about will and shall. Well, you have previously learnt about both of these models in case of future tense, but here we are going to explore them in a bit detail. So let's start now. First of all, they are not written in their singular, or I would say S forms. Let's say wills. This would be incorrect if you are going to write wills or shalls. So in case of questions and negative forms also, they are made without do, means they are not going to take do as a helping verb, because they themselves are models, means they themselves are helping verbs. That's why we are going to add not just after will or shall. For example, will the train be on time? अब इसको आप इस तरह से नहीं कह सकते that do or does the train will be, वो incorrect हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने will यूज कर दिया फिर आप does do को नहीं यूज करोगे. कॉन्ट्रैक्शंस इस तरह से होंगी. कॉन्ट्रैक्शंस दोनों की सेम रहती है, क्योंकि दोनों में देखिए एंड में डबल एल है, तो दोनों की ही कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होंगी. तो यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन रहेगा और उसके बाद में डबल एल. और नेगेटिव हो जाएगा इसका, विल नॉट का हो जाता है वॉन्ट, शैल नॉट का हो जाता है शैंट. ये इनके नेगेटिव फॉर्मेशंस हैं, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्मेशंस हैं. अब जैसे यहाँ पे देखिए, डू यू थिंक इट विल रेन. अब ये इट विल यानी कि ये इट विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट विल रेन. इट वॉन्ट रेन अगेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, नेगेटिव वर्जन है ये. Would is used as a past or less definitive form of will. Less definitive means will में श्योरिटी होती है, लेकिन would के केस में ये इतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं रहती, वो कम हो जाती है. और would past form भी होता है will की, ये हम पहले कर चुके हैं would के केस में. नेक्स्ट में आते हैं फ्यूचर ऑक्सिलियरी. ऑक्सिलियरी का मीनिंग होता है हेल्पिंग वर्ब. तो फ्यूचर में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल और शैल, दोनों को ही हम यूज करते हैं, बट यूजुअली इन केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश विल इज प्रेफर्ड. प्रिडिक्शन के लिए हम इनको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस इज फिनिश्ड. जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी. नेक्स्ट है दिस टाइम टुमारो, और यू कैन से बाय दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग इन द सन. इन द सन मीन्स इन द सनलाइट.
नेक्स्ट इज ही विल हैव फिनिश्ड द होल जॉब बाय दिस इवनिंग, कि शाम तक वो पूरा काम कर चुका होगा, खत्म कर चुका होगा। तीनों ही ये प्रिडिक्शंस हैं। और आप यहाँ देखोगे ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, बिकॉज आईएनजी फॉर्म है यहाँ पे, मॉडल प्लस बी प्लस आईएनजी। ये हमारी परफेक्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे मॉडल, हैव और V3 गिवन है। नेक्स्ट में आते हैं द केस ऑफ सर्टेनिटी। अब जो विल है ये फ्यूचर के लिए तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन ये प्रेजेंट के लिए भी हम कई बार यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, लास्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल पे आइए, आई फोन हिम नाउ। नाउ है दैट मीन्स प्रेजेंट, अभी की बात हो रही है। और अभी भी मैं क्या बोल रही हूँ, दैट आई फोन हिम, फोन मीन्स कॉल, आई कॉल हिम नाउ। अब नाउ भी यूज कर रही हूँ, विल भी यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स ये कंफर्म नहीं है कि आप विल को हमेशा ही फ्यूचर के लिए यूज करो, आप प्रेजेंट में भी इसको यूज कर सकते हो विल को। और इसके लिए आप ये नहीं कहोगे आई फोन हिम या आई कॉल हिम नाउ, आप यही कहोगे आई विल कॉल हिम नाउ, लेकिन ये प्रेजेंट के रेफरेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज समबडी कमिंग अप द स्टेयर्स दैट विल बी मैरी, यानी कि कोई अभी आ रहा है, कमिंग अप, अभी ये एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट की बात है। और यहाँ पे फिर भी हम इसका आंसर ये दे रहे हैं दैट विल बी मैरी। नेक्स्ट है डोंट फोन देम नाउ, डोंट कॉल देम नाउ, दे विल बी हैविंग डिनर। अब नाउ यानी कि अभी, एट प्रेजेंट, अभी उनको कॉल मत करो, दे विल बी हैविंग डिनर। और फिर भी इस टाइम को भी हम डिनोट कर रहे हैं विल को यूज करके, तो विल को हम प्रेजेंट के लिए भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। एज आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड वी कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर फॉर आवर ऑर्डर, यानी कि हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, अभी तुम समझोगी। तो यहाँ पे भी अगेन प्रेजेंट की ही बात हो रही है ये, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी विल को यूज कर रहे हैं, और ऐसे यूसेज बिल्कुल करेक्ट होते, गलत नहीं होते। तो विल सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, प्रेजेंट में भी आप फ्रिक्वेंटली इसको यूज कर सकते हो। विल, हैव और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि V3 को कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। तो अब ये देखिए, इसको हम पास्ट को डिनोट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट कैसा, अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। अब देखिए, डियर सर यू विल रिसेंटली हैव रिसीव्ड अ फॉर्म, कि आपको अभी अभी कोई फॉर्म मिला होगा। अब देखिए ये काम हो चुका है, आपको ये फॉर्म मिल चुका है, तो अब मैं पूछ रही हूँ आपसे विल को यूज करके कि आपको अभी अभी यह फॉर्म मिला होगा। यू विल हैव रिसेंटली रिसीव्ड, आप ये भी यूज कर सकते थे, ऑफ कोर्स यू हैव जस्ट रिसीव्ड अ फॉर्म लेटली और रिसेंटली, लेकिन विल को भी हम यूज कर सकते हैं, एक और तरीका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है जैसे आई वंडर वाई वी हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम, यानी कि अब तक हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, कि मैं यही सोच रही हूँ। डू यू थिंक ही वॉन्ट हैव गॉट आवर लेटर येट, तुम्हें क्या लगता है कि उसे हमारे लेटर अब तक नहीं मिले होंगे। ही वॉन्ट या ही विल नॉट हैव गॉट आवर लेटर येट, उसे हमारा लेटर अब तक नहीं मिला होगा। अब देखा जाए तो ये भी एक एक्शन है पास्ट का ही, लेकिन हम यहाँ पे भी ये विल यूज कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ये सिर्फ विल, हैव, V3 के केस में ही पॉसिबल है, कि अब तक ऐसा हो जाना चाहिए था, क्या नहीं हुआ होगा ऐसे केस में। अब जैसे ये है वी कांट गो एंड सी देम नाउ, हम अभी जाके उनसे नहीं मिल सकते, सी मीन्स मीट, हम उनसे जाके अभी नहीं मिल सकते। दे विल हैव गॉन टू बेड, अभी वो गो टू बेड यानी कि सो गए होंगे, टू स्लीप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फ्रेजल वर्ब है दैट मीन्स टू स्लीप। दे विल हैव गॉन टू बेड यानी कि अभी वो सो गए होंगे। नेक्स्ट इज विलिंगनेस एंड डिसीजंस, मीन्स जो हमारा स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसकी विलिंगनेस क्या है। विलिंगनेस होता है डिजायर, इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है अभी, और उसके डिसीजन के बारे में हम बात करेंगे विल को यूज करके। अब जैसे यहाँ देखिए, कैन समबडी हेल्प मी, आई विल मीन्स इट इज माई वांट, इट इज माई विश टू हेल्प यू, कि आई विल, हाँ मैं कर दूंगी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो दैट इट इज माई डिसीजन टू हेल्प यू। नेक्स्ट है देयर इज द डोर बेल, मीन्स अभी घंटी बची है, आई विल गो, और ये मेरा डिसीजन है या फिर ये मेरी विलिंगनेस है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जाके एक बार देख के आऊं कि डोर पे कौन है, आई विल गो। नेक्स्ट है ओ आई लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल गो एंड शट इट, अगेन सेम केस। एक और एग्जाम्पल है व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, अब यहाँ पे डिसीजन है आई विल हैव ऑरेंज जूस प्लीज, आई विल हैव, अब ये डिसीजन है, और ये ध्यान रखना ये जो हैव है
ये मेन वर्ब है दैट I'll ड्रिंक, इसका मीनिंग है यहाँ पे ड्रिंक। अब ये हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगा लेना कि इसके बाद में V3 मिसिंग है, वो नहीं है। I will have this मीन्स I will eat और I will drink this। नेक्स्ट है did you call Max? Oh no, I forget, I'll call him now। अब अगेन प्रेजेंट वाला केस जो हम अभी करके आए हैं नाउ कि प्रेजेंट में भी हम will को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट में आते हैं will can express a firm intention, a promise और a threat। इन सबको भी हम बताते टाइम यूज कर सकते हैं will को। ये नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे हम shall को भी यूज कर सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि shall को I और we के साथ में ही यूज किया जाता है, लेकिन shall को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में भी यूज किया जाता है। he, she, it, किसी का नेम, they, इन सब के साथ में भी हम shall को यूज कर सकते हैं। और ये नहीं है कि अब ऐसा यूसेज होता नहीं है, बहुत फॉर्मल यूसेज है ये। अगर आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आप देखोगे आर्टिकल्स में शैल लिखा हुआ है, वहां पे विल नहीं है कहीं पे भी। तो इस यूसेज को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए एक बार विल को देखते हैं। That we can denote our intention, a promise or certain kind of threat by using will. Very first example is I really will stop smoking. अब मीन्स I will, अब यहाँ पे एक डेफिनेट काम है कि मैं ऐसा करूंगी ही, ये मेरी इंटेंशन है कि मैं बिल्कुल करूंगी, डिटर्मिनेशन है मेरी। डिटर्मिनेशन के लिए भी हम I V के साथ में will को यूज करते हैं। ये आप जब नोट डाउन करो तो यहाँ पे ब्रैकेट में with IV ये जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट है I'll kill her for this, obviously this is a threat। नेक्स्ट इज I'll definitely pay you back next week, और यहाँ पे ये एक प्रॉमिस है कि हाँ मैं डेफिनेटली, श्योरिटी है यहाँ पे that I'll pay you back, मैं तुम्हारे जितने भी मनी है जो भी है वो अमाउंट पे कर दूंगी नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे नेगेटिव वर्जन है I won't tell anyone what happened, I promise, कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगेन प्रॉमिस है, ये नेगेटिव है तो भी प्रॉमिस है, हम यहाँ पे will को यूज कर रहे हैं, बट अगेन हम I और V के केस में ही यूज कर रहे हैं, सब में I के साथ ही हम यूज कर रहे हैं टू डिनोट इंटेंशन, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट में आते हैं want, नेगेटिव जो हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल किया था वैसे ही है ये। शी वॉन्ट ओपन द डोर मीन्स ये उसकी इच्छा है कि वो नहीं खोलना चाहती डोर को, सो शी वॉन्ट ओपन, अब यहाँ पे हम विल नॉट को यूज कर रहे हैं। द कार वॉन्ट स्टार्ट, गिव मी अ किस, नो आई वॉन्ट मीन्स आई विल नॉट, अगेन रिफ्यूजल है, ये मना कर दिया गया है किसी चीज को, तो वहां पे भी विल नॉट को हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप डोंट नहीं यूज करोगे, नो आई डू नॉट, आई विल नॉट ही यूज होगा। डू हम तब यूज करते हैं, डू डज, जब कोई एक्शन हो रहा हो। अब यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा इनमें से, तो इस वजह से हम विल को यूज करेंगे, विल नॉट, वॉन्ट। और अगर पास्ट रिफ्यूजल की बात हो, इन दैट केस वी हैव टू यूज वुड। वुड नॉट मीन्स वुडंट, शी वुडंट ओपन द डोर, द कार वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग ये अब तक हमारा पास्ट का टाइम हो चुका है कि आज सुबह ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, सो वुडंट हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स एंड ऑफर्स। इनके केस में भी अब जैसे यहाँ पे देखिए ऑफर से स्टार्ट हो रहा है, दैट बैग लुक्स हैवी, आई विल हेल्प यू विद इट, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, ये बैग काफी हैवी लग रहा है, आई विल हेल्प यू विद इट। आप ऐसे नहीं कहोगे दैट आई हेल्प यू विद इट, आप इसको प्रेजेंट में किसी तरह से नहीं बोल पाओगे, आप इसको आई विल, आपको विल यूज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वी यूज विल यू टू टेल पीपल व्हाट टू डू। विल यू, अगर हमें कुछ अपना काम करवाना हो किसी से तो हम इसी तरह से कहते हैं कि आप ऐसा काम कर दोगे प्लीज, क्या आप ऐसा कर दोगे, तो विल यू, इसे हम स्टार्ट करते हैं यूजुअली, विल यू सेंड मी द बिल प्लीज, क्या आप मुझे बिल दे दोगे, भेज दोगे, विल यू, इसे स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट के केस में रिक्वेस्ट वाला पोर्शन है हमारा, विल यू बी क्वाइट, क्या आप शांत हो सकते हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, क्वाइट। ध्यान रखना क्वाइट की स्पेलिंग QUIET, ये होता है चुप रहना, शांत रहना। एक और होता है QUITE, इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली।
कंप्लीटली, परफेक्टली, एब्सोल्यूटली। एक होता QUIT, क्विट, छोड़ देना, हार मान लेना। नेक्स्ट है कम दिस वे, विल यू। डायरेक्ट नेक्स्ट में आते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोगों की विशेष, उनकी इच्छा क्या है, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप ऐसा आप ये लोगे, मीन्स हम उनको ऑफर कर रहे हैं कुछ चीज। अब यहाँ देखिए, विल यू हैव सम मोर पोटैटोज, कि क्या आप थोड़े से और, या फिर कुछ भी यहाँ पे फूड आइटम है कि आप थोड़ा सा और लोगे। विल यू हैव सम मोर, अब जैसे यहाँ पे चाय की बात हो रही हो, आपके गेस्ट आए हैं, आप कहते हो ना थोड़ी सी और ले लीजिए, सो विल यू हैव सम मोर टी। What will you drink? अब यहाँ पे अगेन उसकी विश के बारे में पूछा गया है। What will you drink? क्या लोगे? Will you please turn the music down? अब यहाँ पे ये हमारी इच्छा की बात हो रही है। Will you please turn the music down? It's too loud. और अगर हमें और ज्यादा सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस को शो करना है तो वहां पे will की बजाय हम would को यूज करेंगे, क्योंकि जो would है ये पास्ट फॉर्म तो है ही, साथ के साथ ये प्रेजेंट या फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, और वहां पे ये एक्स्ट्रा पोलाइटनेस को शो करता है, एक्स्ट्रा फॉर्मलनेस को शो करता है, मीन्स एक्स्ट्रा फॉर्मल हो जाता है। वुड यू सेंड मी द बिल प्लीज। अब ये बहुत ज्यादा फॉर्मल स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस यहाँ शो हो रही है। कम दिस वे, वुड यू, क्या आप इस तरफ आइए, ये अगेन पोलाइटनेस है यहाँ पे अगर वुड को हम यूज कर रहे हैं। द लास्ट इज हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किसी की कोई आदत है, कोई टिपिकल बिहेवियर है, उसके बारे में भी जब हम बात करते हैं वी यूजुअली यूज विल एज अ हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी विल सिट टॉकिंग टू हर सेल्फ फॉर आवर्स, यानी कि उसकी तो ऐसी आदत है कि वो घंटों बैठ के बात कर सकती है खुद से ही। When you look at clouds, they will often remind you of animals. कई बार क्लाउड्स में जो शेप्स बन जाती हैं तो उनके बारे में बात हो रही है कि जब तुम क्लाउड्स की तरफ देखते हो तो अक्सर वो तुम्हें याद दिलाते हैं। सो अब इनको ना, इन सबको आप प्रेजेंट में भी रख सकते थे, लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन ये है कि हम विल को भी यूज कर सकते हैं, और हमें यही सीखना है कि एक ही बात को कहने के कितने डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। प्रेजेंट तो हम सीख चुके हैं, हमें पता है, लेकिन हम विल को भी इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी बोल सकते थे, व्हेन यू लुक एट क्लाउड्स, दे, विल को अगर नहीं यूज करते हम, सो दे ऑफन रिमाइंड यू ऑफ एनिमल्स, ये भी इक्वली करेक्ट होता। और यहाँ पे भी शी सिट्स टॉकिंग टू हर सेल्फ फॉर आवर्स, ये भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन विल को भी हम यूज कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा मेथड है। If something breaks down and you kick it, it will often start working again. कि अगर किसी चीज में, किसी मशीन में खराबी आ जाती है, मशीन के केस में खराबी आना, उसके लिए हम ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं break down, that the machine has broken down, मीन्स उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, थोड़ी बहुत खराबी आ गई है। तो अब देखिए, if something breaks down, कुछ अगर चलना बंद कर देती है, फिर कुछ दिक्कत आने लग जाती है किसी मशीनरी में, इन दैट केस यू किक इट, उसको किक करिए, इट विल ऑफन स्टार्ट वर्किंग अगेन, तो वो दोबारा से चलने लगेगी, जैसे हम यूजुअली इंडियंस करते हैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड विल डिसॉल्व मोस्ट मेटल्स। अब ये उसका टिपिकल नेचर है सल्फ्यूरिक एसिड का, कि वो डिसॉल्व कर लेती है लगभग सभी मेटल्स को। तो अगर आप यहाँ पे विल को नहीं यूज करते तो भी इक्वली करेक्ट होता, सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्स मोस्ट मेटल्स, ये हो जाता, और विल को यूज कर रहे हो, ये भी करेक्ट है। और इसी तरह से वुड को हम पास्ट को शो करने के लिए यूज कर लेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में। ही वॉज अ नाइस बॉय बट ही वुड टॉक अबाउट हिमसेल्फ ऑल द टाइम, कि हाँ वो लड़का तो काफी अच्छा था लेकिन वो हमेशा खुद के बारे में ही बातें करता रहता था। ही वुड टॉक अबाउट, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। ही यूज्ड टू को आप यूज कर सकते हो टू डिनोट अ पास्ट हैबिट, वहां पे आप सिंपल V2 को भी यूज कर सकते हो किसी पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए, और आप वुड को भी यूज कर सकते हो किसी पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए। आप ये भी बोल सकते हो दैट ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ ऑल द टाइम, और आप ये भी बोल सकते हो दैट ही टॉक्ड अबाउट हिमसेल्फ ऑल द टाइम, और वुड को तो हमने यहाँ पे देखा ही है। तो अभी आते हैं हमारे वोकैबुलरी वाले पार्ट पे। आज वोकैबुलरी में हम नया कॉन्सेप्ट एक देखने वाले हैं, सिमिली। ये स्माइल नहीं है, इसकी स्पेलिंग ध्यान देना, SIMILE, तो ये सिमिली कहा जाता है इसको, अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन,
तो हम यूजुअली कंपैरिजन के केस में यूज करते हैं इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को। अब कंपैरिजन किसी भी चीज का हो सकता है, और ये क्या करता है कि एक ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ये ज्यादा एम्फेटिक यानी कि काफी ज्यादा असर्टिव, काफी एम्फेटिक यानी काफी असरदार मेथड है ये सिमिलैरिटी को शो करने का। और इनको हम यूजुअली इस तरह से दिखाते हैं एज डैश। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यूजुअली एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी आती है, और यहाँ पे यूजुअली नाउन आता है। नाउन यानी कि किसी का भी नाम जिसकी क्वालिटी यहाँ गिवन होती है। अब जैसे यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में, माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब यहाँ पे है ब्रेव एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। एज अब यहाँ पे नाउन है कि किसकी तरह ब्रेव है, लायन की तरह, तो लायन नाउन हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट में आप देखोगे एज क्लियर एज मड, यहाँ पे क्लियर, तो क्लियर एडजेक्टिव है, और किसकी तरह क्लियर है, मड यानी कि कीचड़। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको यूज करते हैं सिमिली को। योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज मड, और अब आपको पता है मड जो है, कीचड़ है, वो क्लियर नहीं होता। दैट मीन्स आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी क्लियर नहीं है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो दैट योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज मड। कुछ और एग्जाम्पल्स में आते हैं इसके। ये जैसे मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको बताया है एज, और उनके बीच में कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, इस नाउन की होती है यूजुअली। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है गोल्ड के बारे में कहा गया है, द किड्स वर एज गुड एज गोल्ड, सॉरी, द किड्स वर एज गुड एज गोल्ड टुडे। अब गोल्ड जो है इसको हम गुड, इसके लिए मीन्स हम गुड यही एडजेक्टिव यूज करते हैं, इसको काफी अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम किसी पर्सन के लिए ये यूज करेंगे दैट एज गुड एज गोल्ड, यानी कि काफी वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है वो पर्सन। नेक्स्ट है फेदर। अब फेदर की क्वालिटी ये होती है कि वो लाइट होता है, वो हल्का होता है, ये उसके लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो अब देखिए, आई पिक्ड अप दिस लिटिल गर्ल, शी वॉज एज लाइट एज अ फेदर, यानी कि इस छोटी बच्ची को मैंने उठाया गोद में और वो इतनी हल्की थी जैसे कि एक फेदर हो। सो एज लाइट एज फेदर। तो यहाँ पे जो भी नाउन है ये, जैसे गोल्ड हो गया, फेदर हो गया, प्रीवियस एग्जाम्पल में लायन था, मड, तो इन नाउन्स की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी की जिसके लिए वो फेमस है, उस क्वालिटी से मीनिंग निकाला जाता है सिमिली में। अब यहाँ देखिए बैट किस चीज के लिए फेमस है, बैट ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, आई एम अफ्रेड आई एम ब्लाइंड एज अ बैट। और यूजुअली देखिए कई बार ये जो फर्स्ट एज जो है, स्टार्टिंग वाला ये जो एज है, इसको ओमिट यानी कि इसको एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है हर बार आपको ये एज स्टार्टिंग वाला भी मिले, कई बार ये भी होता है कि आप डायरेक्ट एडजेक्टिव एज नाउन सिर्फ यही देखोगे, स्टार्टिंग वाला एज आपको नहीं भी मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर आप इसको ऐसे यूज करते हो दैट आई एम अफ्रेड आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, यानी कि वो भी करेक्ट होगा हमारा। लेकिन अगर स्टार्टिंग वाले एज को हमने ओमिट कर दिया, हटा दिया, तो भी हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट कि आई एम ब्लाइंड एज अ बैट, कि मुझे ज्यादा दिखाई नहीं देता, एक बैट की तरह मैं तो अंधा हो जाता हूँ। नेक्स्ट है माई फादर इज डेफ एज अ पोस्ट। अब डेफ एज अ पोस्ट, अब देखिए यानी कि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, ह्यूमरसली यानी कि मजाक में हम अक्सर इस तरह के कंपैरिजन करते हैं कि उनको बहुत ऊंचा सुनाई देता है, तो वहां पे स्टेटमेंट को आप यूज कर रहे हो एज डेफ एज अ पोस्ट। ओक्स, अब ओक्स फेमस है अपनी स्ट्रॉन्गनेस के लिए। तो अब देखिए, जॉन विल कैरी इट, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, कि वो एक बैल की तरह मजबूत है, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज। नेक्स्ट है रेक। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसको हम रेक बोलते हैं, ये गार्डन में क्लीनिंग के और डिगिंग के काम पे आता है। तो अब देखिए ये काफी पतला होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, माई सिस्टर इज एज थिन एज अ रेक, यानी रेक की तरह काफी पतली है वो। माउस के केस में, द बेबी हैज बीन एज क्वाइट एज अ माउस, क्वाइट यानी कि शांत है वो एक माउस की तरह। नेक्स्ट है शीट। अब देखिए, एज वाइट एज अ शीट, ये हम यूज करते हैं ये डिनोट करने के लिए कि सफेद पड़ चुका है, डर से या फिर बीमारी से बस वो सफेद पड़ चुका है। तो अब देखिए कैन, ये पर्सन का नाम है, कैन वेंट एज वाइट एज अ शीट,
मीन्स वो ऐसा हो गया था एज वाइट एज अ शीट, कि वो चाहे डर की वजह से या बीमारी की वजह से सफेद पड़ गया था। नेक्स्ट है बीट रूट। बीट रूट का कलर आपको पता है रेड होता है, तो इसका इसी तरह से हम इसको यूज करते हैं रेड को लेके। सो सेली वेंट एज रेड एज अ बीट रूट। अब एक इडियम होता है गो रेड फेस्ड। गो रेड फेस्ड यानी कि जब हमारा फेस रेड होने लग जाता है, यानी कि एम्बैरेसमेंट होती है हमें। कई बार होता है शाइनेस, शाइनेस के कारण भी हमारा जो फेस है वो रेड हो जाता है, और कई बार एम्बैरेसमेंट के कारण भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए एम्बैरेसमेंट वाला केस है कि बीटरूट से हम कंपैरिजन कर रहे हैं सेली, अब ये पर्सन का नेम है। सेली वेंट एज रेड एज अ बीटरूट, यानी कि वो काफी एम्बैरेस्ड हो गई थी। नेक्स्ट है बोन। बोन के लिए हम यूज करते हैं एज ड्राई एज अ बोन, यानी कि काफी सूखा होना। दिस ग्राउंड इज एज ड्राई एज अ बोन एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट में आते हैं कि ये हम पहले कर चुके हैं, फूड रिलेटेड इडियम्स में मैंने इसको कवर किया था, और इसके अलावा एक और चैप्टर किया था मैंने इडियम्स को, उसमें भी इसको कवर किया था। इफ समथिंग इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, दैट मीन्स कि वो लार्ज नंबर में बिक रही है, और वो बहुत जल्दी बिक रही है, वो धड़ाधड़ बिक रही है कोई चीज। दिस न्यू मॉडल इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट है लॉग। ये जो लकड़ी है, लकड़ी का एक जो तना एक हिस्सा होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं अक्सर लॉग। सो आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग लास्ट नाइट, यानी कि आई स्लेप्ट वेरी वेल। और यहाँ पे जैसे ये है लॉग है, ये इमोबाइल होता है, यानी कि अपने आप से कहीं नहीं हिलेगा जब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं जबरदस्ती। ये वैसे का वैसे पड़ा रहेगा वहां पे, ये हवा से भी नहीं हिलेगा, काफी हैवी होता है। तो इमोबिलिटी शो की गई है यहाँ इस सिमिली को यूज करके इसकी, कि जो पर्सन कोई आराम से ऐसे सो रहा हो कि वो हिले ही ना, यानी कि वो बहुत अच्छे से सो रहा है, बहुत साउंड स्लीप को एंजॉय कर रहा है वो। नेक्स्ट है ड्रीम। द प्लान वर्कड लाइक अ ड्रीम, यानी कि जैसा हमने सोचा था उतना ही ये सक्सेसफुल हुआ है ये प्लान हमारा। नेक्स्ट है सीव। सीव होती है छननी। Sometimes I have got a mind like a sieve। अब देखिए छन्नी में से सारी चीजें क्रॉस कर जाती है, सिर्फ मोटी चीजें रहती हैं। तो इसी तरह से एक मेमोरी है हमारी, कि मेमोरी से सारी चीजें स्लिप हो जाती हैं, मेमोरी से निकल जाती हैं चीजें। सिर्फ जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमली सैड या एक्सट्रीमली हैप्पीनेस के, सिर्फ वही याद रहते हैं। तो यानी कि मेरी मेमोरी ऐसी है, सीव की तरह, काफी बुरी मेमोरी है मेरी। तो ये है आपका टास्क, आपको यहाँ पे फिल करना है एज पर द कॉन्टेक्स्ट, जैसा भी आपको लगे। और ये एक और एक्सरसाइज है, यहाँ पे भी आपको फिल करना है। सो गाइज थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।